So after when he entered in the show, I was like so disgusted that I did not want to see that face again and again on my face. So I expected from Karan कि करण से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो शायद करण विल गिव सपोर्ट टू मी, बट एट द एंड आई अंडरस्टूड दिस वाज एन इंडिविजुअल गेम और मैं उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती कि मेरा नाम उसके साथ वापस लिख कर आए. Hello Sara, welcome to E Times TV. How are you doing? I am good, thank you so much. And if you had to sum up your journey in the lockup house, what would you say? It was a great experience, something really adventurous which I did not expect, because since it was the first season, so obviously you don't know what is going to happen in the game. So we were completely naive when we entered in the show and couldn't expect a more adventurous journey than this. So it was a crazy roller coaster ride, and I had a great experience. Yeah. Sara, you are known to be a person who never shies away from speaking her mind. लेकिन घर के अंदर हमने देखा कि आप बहुत शांत थी बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले. काफी सारे सिचुएशंस में आप बहुत प्यार से डील करने की सोच रही थी. आपका वो फियर्स एटीट्यूड नहीं दिखा. मैं सोच okay, so this is how I am as a person. This is how I deal with the situations now. So with time and with the kind of experiences you get in your life, you become a certain person. This is what I am today, and you just saw the real me inside. However I am going to deal with the situations was the person you saw inside. So there was nothing like shying or being not fierce. I was taking my stance. However, जैसा भी मुझे लगता था कि ये सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना चाहिए, so I used to deal like that. So every person is different and हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है और डील करता है सिचुएशन के साथ. तो ये मेरा तरीका था डील करने का. जैसे कंगना ने भी वीकेंड पे बोला और हमें भी एज व्यूअर्स देख के नजर आया कि एक टाइम बाद ऐसा लग रहा था जैसे you had lost interest in the game. Was it? Yes, that one particular time came up where this past of mine, which I don't want to name it because I don't want to give unnecessarily importance to that particular thing or person. So after when he entered in the show, I was like so disgusted that I did not want to see that face again and again on my face. So I was really disinterested at one point of time, but that was a wrong decision because game was mine and I was there involved since the very beginning. I shouldn't have lost the interest, but yes, होता है किसी का यार. अब this is how I am, this is what I felt like, so I just took my own calls and decisions and I don't regret on anything. Also, क्या ये वजह भी थी कि आपके ग्रुप के अंदर ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, जैसे पूनम, मुनव्वर और अंजलि का एक ग्रुप है जो कुछ करते हैं वो इकट्ठे करते हैं. ग्रुप में तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी. वो उनका इंडिविजुअल कॉल था कि वो लोग तीनों ज्यादा थिक थे एंड उसमें हमारे ग्रुप को लेकर कोई भी ऐसा हमारी टीम को लेकर कोई भी ऐसा मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं देखती, क्योंकि एट द एंड सब लोग इंडिविजुअल खेल रहे थे. सो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो उनकी थी, उसमें कोई भी उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ हमारी टीम को, क्योंकि जब हमारी टीम एज अ टीम खेलती थी तो फिर सब भूल जाते थे कौन किसका क्या दोस्त है. सब अपना 100% देने में लग जाते थे और हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती थी टीम की विन. So उस पे I will not agree to the fact that उनकी individual friendship. नहीं, लेकिन जब एलिमिनेशन का वक्त आया तो आप पर वही भारी पड़ा ना. अगर उसमें से एक भी वोट आपको मिल गया होता तो आपकी कहानी कुछ और होती शायद. बाकी लोग जो खड़े थे उनको भी एक वोट्स मिले हुए थे, बट एक पर्सन को 3-4 वोट मिले थे. I felt a little bad about, क्योंकि I expected from Karan. Rest जो मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा गहरी थी वो थी निशा के साथ और शिवम के साथ. तो मुझे पता था कि if I ever get into trouble, these people will support me. But unfortunately वो भी उसी लाइन में खड़े हुए थे. So I expected from Karan कि करण से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो शायद करण विल गिव सपोर्ट टू मी, बट एट द एंड आई अंडरस्टूड दिस वाज एन इंडिविजुअल गेम एंड यहाँ पे आप किसी की फ्रेंडशिप को इतना सीरियसली यू कैन नॉट टेक इट. या सारा, ऑल्सो आपने अपने करियर में, अपने लाइफ में हमेशा
जब से भी एक इंसिडेंट हुआ है, आपने कोशिश की है कि आप अपने काम के जरिए जानी जाएं, आपका काम बोले, ना कि आपके पर्सनल लाइफ बोले। और आपने शो में भी प्रीमियर एपिसोड में वो काफी क्लियर कर दिया था कि यू वांट टू बी नोन फॉर योर वर्क। लेकिन जब आपका पास्ट ऐसे आपके सामने आकर खड़ा हो गया, और क्या वो कहीं ना कहीं आज भी आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द गेम? See, this is again I will not agree with the question जो आपने बोला। वो सिचुएशन थी एक, वो पास्ट जो है वो डन एंड डस्टेड है, और मैं उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती कि मेरा नाम उसके साथ वापस लिख कर आए। दिस इज व्हाट इफेक्ट मी, कि मैं नहीं चाहती मेरा नाम यूज हो उस चीज के लिए, क्योंकि यूज हो चुका, 12 साल से यूज होता आ रहा है और आज भी यूज हुआ। अगर ऑडियंस देख रही थी और अगर आप लोग सब फॉलो कर रहे थे तो आप लोगों को पता होगा कि उनको वहां क्यों लाया गया था एट द एंड। तो वो बहुत यूज हो गया, और अब मैं ये कहूंगी कि इनफ ऑफ इट। अब आप भी अपने काम को लेके करो। अगर आपको आप ये मानते हो कि मेरी वजह से आप कंट्रोवर्सी हुई, जो भी हुई उसकी वजह से आप वहां नहीं आए, आप अपने बलबूते पे अपने काम को लेकर आए हो, तो देन यू नो मेंटेन दैट एंड मेंटेन दैट डिग्निटी। आप अपने काम की वजह से आप अपना गेम खेलो। आप मुझे बार बार आके टॉर्चर क्यों कर रहे थे? आप मुझसे बात करना क्यों चाह रहे थे? तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम थी। रेस्ट जो हो गया वो मैं उसको गलती नहीं मानती। हर एक से होती है गलती, से आप सीख लो तो वो एक लेसन होता है, तो मैं उसे लेसन मानती हूँ। और वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता जितना मेरा नाम उसके साथ लिखा हुआ आना इफेक्ट करता है। मैं नहीं चाहती इनफ ऑफ यूजिंग माई नेम, इनफ ऑफ इट, सो आई जस्ट डोंट वांट देम टू यूज माई नेम एनीमोर। एंड ऑल्सो आपने एक दो बार शो में ये मेंशन भी किया था कि किस तरीके से आपको पता था कि शायद ये चीज शो में हो सकती है आगे चल के, एंड शायद आपने ये चीज मेकर से पहले क्लियर भी कर दी थी कि आई होप ही इज नॉट कमिंग इन द शो। डिड यू एवर फेल्ट चीटेड व्हेन दिस थिंग हैपेंड? अभी ये एक रियलिटी शो है, क्रिएटिव्स अपने फॉर द टीआरपी दे ऑब्वियसली यू नो ब्रिंग इन व्हाटएवर मसाला दे कैन ब्रिंग इन, एंड दिस मसाला फॉर पीपल टू रीड। भले ही वो हमारी लाइफ में कोई भी किस तरह का सिचुएशन हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, मसाला मैटर्स अ लॉट। सो उस हिसाब से उन्होंने, मैं उनको नहीं बोलूंगी कि उन्होंने मुझे चीट किया, बट डेफिनेटली आई वाज अपसेट कि मैंने जब उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर बोला था दैट वी आर नॉट ब्रिंगिंग इन समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज रियली ओके विद इट, बट देन लेटर व्हेन दैट हैपेंड मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू यू नो ब्रिंग पब्लिसिटी इन और मेक अ कंट्रोवर्सी फ्रॉम माय एंड, कि मैं कुछ भी रिएक्ट करूंगी तो वो बाहर तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर नाम यही लगता है कि इसने कंट्रोवर्सी की, कोई ये नहीं देखता उसकी सिचुएशन क्या थी। तो मैंने उस हिसाब से जितना मैं बेटर उसको डील कर सकती थी और जितना मैं इस चीज को यहीं फुल स्टॉप कर सकती थी, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया। बिल्कुल। आपने शो से कितने दोस्त कमाए हैं जो आप बाहर लेकर गई है? क्योंकि सायशा तो अपने इविक्शन इंटरव्यूज में आपका नाम ले रही है। सायशा ऐसी दोस्त है जो मैंने फॉर लाइफ टाइम अर्न की है। मुनव्वर मैंने अर्न किया है। करण से मेरी दोस्ती रहेगी डेफिनेटली, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे वो लॉक नहीं दिया था, लेकिन आई एम गोइंग टू सुनाउ हिम द एंटायर लाइफ। एंड निशा एक अच्छी दोस्त मिली है, और बाहर आके देखते हैं बाकी और सबसे कैसे इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि अंदर सिचुएशन डिफरेंट थी, सबका माइंडसेट दूसरा था। सो सब एक गेम फीवर से अंदर गए थे। आई ऑल्सो वेंट इनसाइड गेम फीवर, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन आप जैसे कैरेक्टर होते हो वो आप मार नहीं सकते, वो बाहर आ ही जाता है। तो आई जस्ट प्लेड जैसे मेरा एथिक्स और मेरे जमीन ने मुझे अलाउ किया, मैंने वैसे खेला। सो लेट्स सी कौन फ्रेंड बनता है बाहर आके। क्या आपने बाहर आकर कुछ भी थोड़ा बहुत गेम देखा? क्या लोगों से बात की? अगर कुछ देखा क्लिप्स या बिट्स एंड पीसेस, किसका गेम आपको बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल? मुझे मुनव्वर का गेम बहुत अच्छा लगता है। पायल इज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्विंग, शी इन्वॉल्व्स पीपल अ लॉट, यू नो, वो कुछ भी करे वो इन्वॉल्व करके रखती है लोगों को, जो बहुत अमेजिंग बात है। सो मुझे पायल और मुनव्वर का गेम अच्छा लगता है। रेस्ट अभी तो ऑडियंस पे सब कुछ है, लेट्स सी क्या होता है। सारा, ऑल्सो ड्यूरिंग योर इविक्शन कंगना ने बहुत बार बोलने की कोशिश की, और आपका जो कोड भी आया था आपको सीक्रेट के लिए, एंगेजमेंट, और जिस तरीके से कंगना ने भी कोप करने की कोशिश की कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। व्हाट डू यू वांट टू से? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क छोड़ गया व्यूअर्स के माइंड में। आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट माय सीक्रेट इवन नाउ एज वेल, सो मे बी आफ्टर द शो इज ओवर वी कैन, जब हमको अलाउड होगा तो बात कर सकते हैं, बट अभी एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट। ओके।
Also, if given a chance, would you like to go back? और क्या इस Oh my बार God, game day? I'm if given a chance, I've already packed my bags. I'll just run away. और इस बार क्या हमें मतलब सब एक फोकस्ड सारा खान नजर आएगी जो किसी के बारे में नहीं सोचेगी? Yes, जितना मैं अपने अंदर मेरी आत्मा जितना मुझे अलाउ करेगी ना सोचने के लिए, उतना सोचते हुए और उतना ना सोचते हुए I will definitely play. अच्छा, जाने से पहले क्विक रैपिड फायर, आई विल थ्रो फ्यू एडजेक्टिव्स एट यू एंड यू हैव टू टेल मी कि किससे आप आइडेंटिफाई करती है ये वर्ड. बिगेस्ट मैनिपुलेटर इन द हाउस? मुनव्वर. सबको पता है. राइट. हु इज योर हार्ट बीट या लाइफलाइन? हु वाज योर हार्ट बीट और लाइफलाइन इन द हाउस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मैंने रिलेशन नहीं बनाया कि मेरा हार्ट बीट या मैं लाइफलाइन बन जाए कोई. ऐसा तो कोई नहीं. बट किससे बहुत ज्यादा बॉन्ड किया आपने? फ्रेंड किसको बुला सकती है घर के अंदर? निशा को मैं फ्रेंड बोला था अपनी, और निशा मुझे बहुत मतलब आई रियली कनेक्टेड विद हर, सो यस शी. एंटरटेनर? एंटरटेनर अगेन मुनव्वर. हंग्री फॉर 2 minutes फेम? नाम भी नहीं लेना चाहती मैं. ले लो फिर भी. नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे मुंह से मेरा नाम भी ओके, आई अंडरस्टूड कौन है, और ऑडियंस व्यूअर्स को भी मुझे नहीं लेना. आई स्वेयर आई डोंट वांट टू गिव दैट फेम आल्सो फॉर 2 minutes, फॉर 2 seconds आल्सो. ओके. मिसअंडरस्टूड? मी. ओके. बदतमीज? साइशा. साइशा. कोई और नाम नहीं लग रहा आपको? क्योंकि है एक दो लोग. शिवम भी है बदतमीज. जब वो बदतमीजी करने पे आता है तो मतलब वो छोड़ता नहीं है किसी को. क्योंकि अंजलि सबको लगती है कि बदतमीज है. कंगना ने अंजलि एब्सोल्युटली यस यस, मैंने भी बोला था उनकी जो जुबान है वो थोड़ी तमीज वाली नहीं है. विनर क्वालिटी किस में नजर आती है आपको? मुनव्वर. एंड योर 2 favorites? साइशा एंड शिवम आल्सो. फ्रेंड फॉर लाइफ? साइशा, शिवम एंड या निशा. अच्छा, कोई बच गया? जोकर कौन लगता है आपको घर का? घर का हमेशा जोकर खुश रखता है, घर का माहौल बना के रखता है. यार मुनव्वर ही है जो घर पे सबको माहौल बना के रखता है. बातचीत में जब कोई सैड होता है, अपसेट होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव या फनी चीजें बोलने की कोशिश करता है. सो यस. नॉट ट्रस्टवर्दी? करण. ओके. जाने से पहले आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी सारा? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी. द काइंड ऑफ लव आप लोगों ने मुझे शो में दिया है, रियली ओवरवेलमिंग. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा इस शो से, एंड आई एम रियली थैंकफुल. और ब्रिंग बैक सारा का जो हैशटैग चल रहा है, आई कीप चेकिंग ऑन इट एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी फॉर योर लव. आप लोगों ने जो मुझ पे अभी तक दिया है, थैंक यू, और इसे बरकरार रखिए. Thank you so much, Sara. It was pleasure talking to you, and all the best for your future. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Bye bye.